الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں جگہ عطا کر دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ معاملات کا انجام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اس وقت ملکی حالات جس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ کسی بھی اہل بصیرت سے مخفی نہیں ہیں۔ سیاسی حالات میں کس قدر کشیدگی پائی جاتی ہے، معیشی اور معاشرتی معاملات کس قدر جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہیں، اور دینی حالت کس قدر ابتر ہے، اخلاقیات کا جنازہ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان ضرور یہ سوچتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ایسے معاملات میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ دیکھیے، اسلام ایک ہمہ گیر نظام کا حامل دین ہے جس میں زندگی کے ہر گوشے میں مکمل رشد اور ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔ دینی دنیاوی مسائل ہوں، معیشت کے اور معاشرت کے مسائل ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قول اور فعل کے ذریعے اپنی امت کی ہر جانب جو ہے وہ اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کی سیرت طیبہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو یقیناً دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی اور کامرانی انسان کا مقدر بنتی ہے۔ اسلام ہمیں صرف دین کے مسائل اور دنیا کے مسائل کے بارے میں ہی ہمیں مطلع نہیں کرتا ہے، بلکہ بالخصوص ہماری سیاست کے بارے میں اور ہماری حکمرانی کے بارے میں بھی ہمیں واضح ہدایات جو ہے وہ دیتا ہے۔ وہ سیاست، وہ حکمرانی جس کے ذریعے سے نہ صرف اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے بلکہ خلق خدا کو بھی خوش کیا جا سکتا ہے، اور اس دنیا کو جنت کی نظیر جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے ان تمام ہدایات کو پس پش ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ زوال پذیر ہے، تباہی اور بربادی کا شکار ہے، اور یہ مسلمانوں کے علاقے فتنوں کی آماجگاہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر جماعت اپنے آپ کو حق کا جو ہے وہ دائی سمجھتا ہے کہ حق جو ہے وہ صرف اور صرف میرے پلڑے میں ہے، باقی سارے کے سارے لوگ باطل ہیں، اور ایک میں ہی ملک کا خیر خواہ ہوں، میں ہی ایک ملک کا ہمدرد ہوں، میرے علاوہ اور میری جماعت کے علاوہ کوئی پاکستان کا جو ہے وہ ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ کلمہ، یہ دعویٰ ہر سیاسی جماعت کے لیڈر کی زبان کے اوپر ہے۔ آئیے تعصب سے بالا ہو کر اور کسی بھی قسم کی تعصب کی اینک اور آنکھوں سے پٹی اتار کر آغاز کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ
جو آدمی اور جو لیڈر اور جو حکمران اور جو پارٹی واقعہ ہی پاکستان کا خیرخواہ ہے، اسلام اور مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، اللہ انہیں عزتیں اور سرفرازیاں اور کامیابیاں نصیب فرما۔ اور جو لوگ اس ملک کا ذرہ بھی برا سوچنے کا رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہلکا سا بھی اس کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں، اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے، اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے، اور ان کے شر سے اس پاکستان کو اور اس پاکستان کی عوام کو محفوظ فرما دے۔ آج ہماری تباہی اور بربادی کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے چند ایک کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اسلامی تعلیمات سے ہم بہت دور ہیں، عامت الناس بھی خاصت الناس بھی۔ کوئی ریڑھی لگانے والا ہے، کوئی سبزی لگانے والا ہے، کوئی کریانے کی دکان پہ بیٹھنے والا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی انجینئر ہے، الا ماشاء اللہ جسے اللہ نے بچا رکھا ہو، اور کوئی عہدے دار ہے اور سیاسی عہدے پہ فائز ہے۔ دین نام کی چیز ہمیں جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ جہاں کہیں بھی دین استعمال ہوتا ہے تو بطور تبرک کے استعمال ہوتا ہے، دکان کا، کارخانے کا، فیکٹری کا، سیاست کا، سیاسی جلسے کا آغاز کرنا ہوتا ہے تو تبرک کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے، افتتاحی جو ہے وہ خیر کے کلمات کہہ دیے جاتے ہیں کہ اس میں برکت ہو جائے، لیکن آگے جو منصوبے ہیں، آگے جو کارگزاری ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی ریڑھی فروش سے، کسی سبزی والے سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی انجینئر سے، کسی پائلٹ سے، الا ماشاءاللہ جن کا میں استثناء کرتا ہوں، جن کو اللہ نے بچا رکھا ہے۔ اکثریت کی حالت یہ ہے کہ کلمہ بھی نہیں آتا ہے، سورۃ فاتحہ نہیں آتی ہے، نماز نہیں آتی ہے، سورۃ اخلاص نہیں آتی ہے، اور اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے۔ اس آدمی سے آپ ملک کی خیر خواہی کا کیا تصور کر سکتے ہیں؟ وہ چھوٹا انسان ہے یا بڑا انسان؟ دین تو قریب سے بھی نہیں گزرتا ہے۔ عامت الناس، خاصت الناس، حکمران، کسے معلوم ہے نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے، اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے، دینداری کیا ہوتی ہے، تقوی کیا ہوتا ہے، کس کس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ باتیں تو قریب سے بھی نہیں گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جو شروع میں سورہ حج کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جن لوگوں کو ہم حکمرانی دے دیتے ہیں، لوگوں کا سربراہ اور حکمران بنا دیتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا سب سے مہم فریضہ یہ ہے، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ کس کا فریضہ ہے؟ یہ ہر بندے کا فریضہ ہے، لیکن خاص طور پہ ہمارے حکمرانوں کا فریضہ ہے، ہمارے بڑوں کا فریضہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، اور برائی سے روک کر رکھ دیا جائے۔ اس لیے کہ حکمران پارٹی نہ صرف زبان سے روکنے کی طاقت رکھتی ہے، بلکہ ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت رکھتی ہے، اور شریعت کا حکم ہے کہ جو ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے، جو زبان سے روک سکتا ہے وہ زبان سے روکے۔ لیکن افسوس، یہاں پہ برائی سے روکنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جس حکمران کا بھی سیاسی نامہ اور تاریخ نامہ اور اس کا جو ہے وہ زندگی نامہ جو ہے وہ کھول کر دیکھ لیں، اس نے برائیوں سے کیا روکنا ہے، برائیوں میں لتڑا ہوا ہے، بھرا پڑا ہے، ساری زندگی پاپوں سے بھری پڑی ہے۔ اس آدمی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ وہاں پہ خیر اور وہاں پہ بھلائی اور وہاں پہ کامیابی اور وہاں پہ امن اور سکون جو ہے وہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन मिनहु सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम। लोगो, तुम जरूर बिजरूर नेकी का हुक्म दो और जरूर बिजरूर बुराई से रोको। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह का अजाब नाज़िल हो जाएगा और फिर तुम अल्लाह से दुआ मांगोगे, तुम्हारी दुआ जो है वो कबूल नहीं होगी। आज यही कैफियत। बुराई को रोकना तो बहुत दूर की बात है, बुराई के महफिल में खुद शरीक होना अपने लिए एजाज समझा जाता है। बुराई की मुआवनत करना और उसकी सरपरस्ती करना ये अपने लिए एजाज समझा जाता है। बुराई को नेकी का नाम रख दिया गया है, दिन का नाम रात और रात का नाम दिन रख दिया गया, अदल का नाम जुल्म और जुल्म का नाम अदल रख दिया गया, झूठ का नाम सच्चाई, सदाकत और अमानत रख दिया गया है। ऐसे हालात में मुल्कों के हालात जो है वो दुरुस्त नहीं हुआ करते। इसलिए सबसे बड़ी खामी तो यही है कि हमारे हर तबके में बुराई से मोहब्बत पाई जाती है, नफरत नहीं पाई जाती। छोटा तबका भी, दरमियाना तबका भी और ऊपर वाला तबका भी, तमाम तबकात में इल्ला माशाअल्लाह जो ऐसे हैं जो बचने वाले हैं या नफरत करने वाले, उनका शुमार ही नहीं है। ना वो बोल सकते हैं, ना वो बोलते हैं, ना उन्हें कोई बोलने ही देता है। और जिनका तोती बोलता है वो बुराइयों में खुद मशगूल है और बुराइयों की सरपरस्ती करते हैं और उनको कोई ना पूछने वाला है और ना कोई रोकने वाला है। दूसरे नंबर पर हमारी खराबी और हमारी तबाही और बर्बादी का जरिया हमारी लीडरशिप है। कौम को आज तक कोई रहबर और रहनुमा नहीं मिल सका, कोई ऐसा लीडर नहीं मिल सका जो लोगों के लिए नमूना बन सके, जो उमर बिन अब्दुल अजीज बन सके, उमर इब्न खत्ताब बन सके, अबू बकर का पैरोकार ही बन सके। आज तक कौम को हमें ऐसा लीडर जो है वो नहीं मिला। लीडर मिलता है जो लोगों का खून चूसने वाला होता है, कौम के माल से अय्याशी और जो है वो अपनी जिंदगी के गुलछड़े अड़ाने वाला होता है। वो ऐसे लीडर मिलते हैं कानून के जरिए, कानून बनाकर गरीब आदमी की तनख्वाह 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 और हुक्मरान तबके की कम से कम तनख्वाह 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। कानून बनाया जाता है कि ये हुक्मरान है, इसको तनख्वाह जो है वो इतनी दी जाए और फिर तनख्वाह के बाद अरबों की खरबों की जो करप्शन की जाती है वो तो किसी खाते में नहीं है, वो तो किसी दायरे में नहीं आती, उसके बारे में तो आप बात ही ना कीजिए, पूछे ही नहीं। ये कौम का खून और पसीना चूस कर जिंदगी में गुलछड़े अड़ाने वाले फिर लोगों के सामने कौम के नाम पे भीख मांगते हैं और मुल्क को दिवालिया होता हुआ दिखलाते हैं और ये खबरें नशर करते हैं कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने वाला है। ऐसे बेगैरतों को कभी गैरत ना आई है ना आनी है। अपनी जिंदगी लाखों में नहीं है, करोड़ों में खेलते हैं, अरबों में और खरबों में खेलते हैं और मुल्क के बारे में कहते हैं मुल्क के खजाने खाली हैं और यहां तो ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, हमें मजबूरन ये करना पड़ेगा, हमें मजबूरन वो करना पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर टैक्स लगने हैं, तुम्हारा खून चूसना है, तुम्हारी अद्वियात को महंगा करना है, तुम्हारे खाने पीने को महंगा करना है, तुम्हें खाने पीने से महरूम होना पड़ेगा, इसलिए कि ये मुल्क जो है वो लोगों की जानें लेने के बगैर नहीं आ सकता। ऐसे लीडर जब कौम की राहबरी और रहनुमाई करने वाले मौजूद हों तो वहां कहां तरक्की हो सकती है, वहां कहां कामयाबी मिल सकती है, वहां पे किस तरीके से अमन और सुकून जो है वो पैदा हो सकता है। ये मुल्क हर किस्म की दौलत से माला माल मुल्क है। इस मुल्क को किसी चीज की कमी नहीं है। यहां सोने के जखायर हैं, यहां पेट्रोल के जखायर हैं, यहां डॉलरों के जखायर हैं, यहां हर चीज मौजूद है। जमीन दुनिया की सबसे ज्यादा जरखेज जमीन है और सारी जमीन दुनिया की दौलतों से माला माल दौलत है। लेकिन अफसोस
मुल्क जो है वो भीख मांगने पे मजबूर है। किराए से टट्टू रिश्वत लेकर, चंद पैसे लेकर मुल्क के तमाम ज़खायर जो है वो बेच देते हैं। ये हमारे लीडर हैं। जहां पे लीडरी के लिए कोई मेयार नहीं है, पैसा चलता है, दौलत चलती है। आइए आप भी दौलत दे दें, आप भी लीडर बन जाए, आप भी हुक्मरान बन जाए। नहीं दे सकते हैं तो भाग जाइए। यहां तो हुक्मरानी उसको मिलती है जो करोड़ों खर्च कर सकता हो, अरबों खर्च कर सकता हो, उसे मिलेगी। जब ऐसे हालात हों तो फिर वो कौमें तरक्की नहीं किया कर। वो कौमें जिनके लीडर खुद ही अपनी कौम को लूटने के डरते हो, ऐसी कौमों ने क्या कामयाबी हासिल करनी है? ऐसी कौमों को इज्जत जो है वो कहां से मिल सकती है? तीसरे नंबर पर हमारी कौम इफ्तिराक और इंतिशार का शिकार है। सियासी तबका वो तो आपस में गुथम गुथा है ही है, गिरेबान क्या सब कुछ वहां पे चलता है। कोई दीनी जमात, कोई एक मस्जिद के नमाजी, कोई एक मोहल्ले के रहने वाले, कोई एक छोटी तंजीम, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। हर बंदा दूसरे का गिरेबान जो है वो पकड़े हुए है। एक जगह पे हम किसी काज के लिए, किसी मिशन के लिए जमा नहीं हो सकते हैं। आपस के मफादात जो है वो तर्क नहीं कर सकते हैं। आपने तो ये फरमाया था, मोमन जो है वो सारे के सारे जस्से वाहिद की तरह। पांव को तकलीफ होती है तो सर महसूस करता है, सर में तकलीफ होती है तो पांव महसूस करता है। कहीं पे भी जिस्म के हिस्से में दर्द महसूस हो तो सारा जिस्म बेदार रहता है, नींद नहीं आती है। एक मोमन दूसरे मोमन को इमारत की तरह मजबूत और ताकतवर बनाता है, और यहां हर मुसलमान दूसरे मुसलमान को कमजोर करता है, उसकी पावर को निचोड़ता है और उसका इम्तिहान लेता है कि ये किस कदर जो है वो खड़ा हो सकता है, ये कब गिरता है और उसके गिरने का तमाशा देखता है। जैसे जब इस तरह की हालत हो तो वो कौमें तरक्की नहीं किया करती, वो कौमों में अमन पैदा नहीं हुआ करता। वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, लोगों आपस में इफ्तिराक और इंतशार ना करो, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम जलील हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, लोगों आपस में इंतशार ना करो, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ, आपस के वफादात जो है वो तरक कर दो और मिल्ली और कौमी वफादात जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ करो। कौम के जरिए से कौम को जो है वो इज्जत मिलती है और तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इनफिरादी मफादात से कौम को कोई फायदा नहीं होता है। आपने फरमाया था, ऐसा मेरा जी चाहता है बैतुल्लाह की बुनियादों को गिरा दूं और दोबारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादें जो है उन्हीं के ऊपर बैतुल्लाह को तामीर करो। लेकिन तेरी कौम जो है वो नई मुसलमान हुई है, कहीं फितने का शिकार ना हो जाए, कहीं आपस में इफ्तिराक और इंतिशार का शिकार ना हो जाए। इसलिए जिस हालत में बैतुल्लाह बना हुआ है मैं उसी हालत में रहने देता हूं। क्या समझ आई कि बहुत से काम कौमों को इंतिशार से बचाने के लिए सही होने के बावजूद छोड़े जा सकते, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद को कायम करने के लिए बहुत सारी बातें तर्क की जा सकती हैं। लेकिन आज हम अपनी अना को किसी भी सूरत में ठेस पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी खातर पूरा मुल्क जलता है तो जल जाए, तबाह होता है तो तबाह हो जाए, मेरी अना को ठेस जो है वो नहीं पहुंचनी चाहिए। जब कौमों की हालत ऐसी हो, कोई तबका, सियासी तबका है, दीनी तबका है, मसलकी तबका है, कोई तंजीम है, हर कौम के हर ग्रोह की हमारी जो है वो यही हालत है। किसी जगह पे हमारा इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है। दीन के लिए, कौम के लिए, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, अपने लिए कहीं पे भी हम एक जगह पे खड़े होकर जो है वो बात नहीं कर सकते। जब इंसान मुत्तहिद हो जाता है तो रस्सी की तरह मजबूत हो जाता है, जब तन्हा हो जाता है तो छोटे छोटे धागे बन जाते हैं, उन्हें बच्चा भी तोड़कर जो है वो फेंक देता है। और आज हमारी कैफियत यही है कि हमें धागों की तरह तोड़ तोड़ कर जो है वो फेंका जा रहा है, और हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन हमारी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, लोगों आपस में मुत्तहिद हो जाओ।
आपस में अपने मफादात को तर्क कर दो, कभी अपनी आना को छोड़ दिया करो। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला इज्जतें, रिफतें, बुलंदियां और कामयाबियां जो है वो अता कर दे। 313 के लश्कर हजारों के लश्कर पे गालिब आ जाएंगे, चंद हजार के लश्कर लाखों के ऊपर गालिब आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा इत्तेफाक और इत्तेहाद ही नहीं होगा, लाखों के लश्कर चंद हजारों से भी शिकस्त खा जाएं। आज हमारी वही हैसियत है। इफ्तिराक और इंतिशार का पूरी कौम जो है वो शिकार है, बड़े भी और छोटे भी। इसलिए इस डगर को जो है वो हमें चेंज करना होगा। 3 चीजें। चौथी चीज, आज हमारे पास जो है कानून नाम की, निजाम नाम की कोई चीज नहीं। उसूल, जवाबित, कानून, दस्तूर, इस नाम की कोई चीज नहीं। कानून क्या होता है? जिस कौम के पास कानून होता है वहां पे अमन होता है, वहां पे एक निजाम चलता है। जहां कानून ही कोई ना हो, जंगल का जो है वो मामला और उनका निजाम चलता हो, वहां पे हर आदमी जो है वो बादशाह होता है। जहां पे सारे बादशाह बन जाए वहां पे जंगें ही होती है, वहां पे तूफान बदतमीजी जो है वो पैदा हो जाता है। निजाम है। मैं जुमा पढ़ा रहा हूं, आप जुमा पढ़ रहे हैं, सारे खड़े हो जाएं, हमने जुमा पढ़ाना है, तो यहां क्या निजाम चलेगा? यहां पे क्या मामला जो है वो बन जाएगा? कोई भी किसी की बात सुनने के लिए जो है वो तैयार नहीं हो। हर इदारा, हर जमात, हर जगह, हर इलाका, जो कुछ भी है, एक दायरे के अंदर, एक निजाम के अंदर, एक कानून के अंदर महदूद होकर जब जिंदगी बसर करता है, तो वहां पे हुकूमत का निजाम, रियाया का निजाम जो है वो चलता है। जब कानून ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। आज हमारे मुल्क की हालत यही है, यहां पे कोई निजाम, कोई कानून नहीं। इसलिए कि कानून बनाने वाले खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, कानून को मजाक बनाया जाता है। जिसको जी चाहो जब चाहो पकड़ लो, जिसको जी चाहो जब चाहो छोड़ दो। बेजुर्म मुजरम सैकड़ों सालों से, मुद्दतों से जेलों में पड़े हुए, उनको कोई पूछने वाला नहीं। और दुश्मनी की बिना पर जिसको पकड़ना है फल फौर अदालत लग जाती है और वारंटे गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं, और जिसको छोड़ना है मिनटों में अदालतें लग जाती है और उसको छोड़ दिया जाता है। जहां पे इस तरह के निजाम हो वहां पे कौमें तरक्की नहीं कर सकती। गरीब को कोई पूछता नहीं है, और अमीर को जो है वो सारे निजाम और सारे कानून ही उसके लिए हैं। जिस तरफ को मुंह मोड़ना है निजाम का, कानून का, उसी तरफ को मोड़ दो, उसके हक में कर दो, बस ये निजाम जो है वो कामयाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक निजाम दिया था। एक औरत ने चोरी कर ली तो उसकी सिफारिश के लिए बहुत सारे लोग आगे बढ़े, आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया। आपने फरमाया, लोगों ये तो और कबीला कुरैश की, कबीला बनु मखजूम की फातिमा है। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदाहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी आज चोरी करती तो मोहम्मद उसका भी हाथ काट देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निजाम, निजाम सबके लिए है, कानून सबके लिए एक जैसा है। कोई भी चोर है उसके लिए कोई माफी नहीं। फरमाया, पहली कौमों के लोग इसी वजह से तबाह बर्बाद हो गए। जब कोई चौधरी चोरी करता उसे छोड़ देते, जब कोई गरीब आदमी फंस जाता उसे मार डालते। फरमाया, ये तो कौमों की तबाही और बर्बादी का जरिया है। आज हमारे यहां कौन सा निजाम है, कौन सा कानून है? जिन लोगों ने कानून बनाने थे, शरीयत के कानून तो बहुत दूर की बात है, दुनिया के कानून बनाकर भी उसके मुताबिक अमल नहीं किया जाता। जिस कानून को अपनी तरफ मोड़ना हो, जब चाहो उसको अपनी तरफ मोड़। जिस मुल्क में, जिस इलाके में इस तरह की कानून साजी होती हो, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती, वो कौमें कभी कामयाब नहीं होती। आखिरी बात, वक्त थोड़ा सा है, 2 बातें जिक्र करनी है। एक बात जिक्र करके उसके बाद आखिरी बात जिक्र करता हूं। हमारे यहां एहतिसाब का मामला सिरे से मौजूद नहीं। जिस कौम में एहतिसाब नहीं होता है वो कौम कभी इज्जत नहीं हासिल कर सकती। पूछना, तुम ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये तुमने गलत किया है। ये मुहासबा का निजाम इस्लाम बड़ा खूबसूरत निजाम,
जिंदगी के तमाम गोशों में हमें जो है वो रहनुमाई देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में चले गए, गंदम का ढेर लगा हुआ है, आपने अपना हाथ दाखिल कर लिया, गंदम निकाली तो अंदर से गीली निकली। आपने फरमाया मा हाज़ा या साहिब ताम, है गंदम वाले ये क्या है, ये गीली क्यों है, ऊपर तेरी गंदम खुशक है नीचे गीली है। फरमाया या रसूलल्लाह रात बारिश हो गई थी, मैंने ऊपर खुशक डाल दी। आपने फरमाया आपने इसको ऊपर क्यों नहीं कर दिया, कहीं यराउन्नास, लोग गीली गंदम को देख लेते, लेनी है तो ले, ना लेनी हो तो ना ले। आपने मुहासबा किया, आपने पूछा ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, दूसरे तरीके से जो है वो अमल करो। एक आपका गवर्नर, एक आमिल बैतुल माल का पैसा इकट्ठा करके लेकर आया, आकर कहने लगा या रसूलल्लाह ये बैतुल माल का है और ये मेरा है, ये बैतुल माल का है और ये मेरा तोहफा है। आप गुस्से में आ गए, लोगों को जमा कर लिया, खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया मैं लोगों को गवर्नर बनाकर भेजता हूं, ओहदा देकर भेजता हूं, वहां से माल जमा करते हैं और जमा करके आगे मुझे ये बतलाते हैं ये मेरा है और ये बैतुल माल का है। ये आदमी अपनी मां के घर में, अपने बाप के घर में बैठे, मैं देखता हूं इसको कहां से तोहफे मिलते हैं, इसको कैसे तोहफे मिलते हैं। ये सारे का सारा बैतुल माल का माल है, किसी का इसमें माल नहीं है। जो उसने गवर्नरी करनी है वो अपनी तनख्वाह ले, वो अपनी मजदूरी ले, उसको मजदूरी मिलती है, मुसलमानों के माल में उसका जर्रा बराबर भी हक नहीं है। आपने फरमाया मैंने अपनी बात पहुंचा दी है, क़यामत का दिन होगा, कोई आदमी कल आएगा, अपनी गर्दन के ऊपर गाय उठा रखी होगी, ऊंट उठा रखा होगा, बकरे उठा रखे होंगे, फरमाया वो उसके बोझ तले दबा हुआ होगा और मुझे मदद के लिए पुकारेगा, मैं कल उसकी मदद के लिए हाजिर नहीं हो सकूंगा। मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया था, पहुंचा दिया, ये माल तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। ये मुहासबा, ये एहतिसाब आज कौन पूछने वाला, ये माल आपने कमाया तो कहां से कमाया, ये इतना माल आपके पास कहां पे जमा हो गया, ये वापस जमा करवाओ। चोरी का इल्जाम तो हर सियासतदान पे लगता है, लेकिन उससे निकलवाने वाला कौन है? जो निकलवाने वाला है वो उससे बड़ा करप्ट है, उसने उससे ज्यादा माल जमा कर रखा है, इस वजह से उसमें हिम्मत और जुर्रत ही नहीं है उस पर पैसा निकाल सकते। आज तक कितने सियासतदानों के नाम आए हैं, उसने इतने की करप्शन की, उसने इतने की किया, उसने इतने की, 1 रुपया भी निकलवाया, हिम्मत ही नहीं है, इसलिए कि मेरे पास भी मौजूद है, मेरे भी निकलने, मुझसे भी निकलवाए जाएंगे, लिहाजा मैं कैसे उससे निकलवा लूं। कोई बंदा दूसरे के पैसे निकलवाने के लिए जो है वो तैयार। जब ऐसे मुहासबे का इंतजाम मौजूद ना हो, वो कौमें तरक्की नहीं करती, वो जलील हो जाती, तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती हैं। और आज हमारी बर्बादी और तबाही के बुनियादें जो है वो रखी जा चुकी हैं। आज हमें जरूरत है हम संभलें, जहां तक हम अमल कर सकते हैं हम अमल करें, हम तो करप्शन ना करें, हम तो बेईमानी ना करें, हम तो किसी के साथ ज्यादती ना करें, उनका मामला उनके साथ है। हर बंदा अगर अपनी इस्लाह करने की कोशिश करे तो मामला जो है वो बड़ा बेहतरीन और बड़ी दूर तक जा सकता है। आखिरी बात जिक्र करना चाहता हूं, पिछले 2 दिनों में मुल्क के अंदर जो कुछ भी हुआ, सियासी पार्टियों के बारे में हम नहीं बात करते, कौन हक पर है, कौन झूठ पर है, कौन बातिल पर है, ये आप लोगों का फैसला है, जिसका मर्जी साथ दे। लेकिन सियासी हालात की बिना पर 2 दिन में मुल्की अमलाक को, कौम के पैसे के और कौम की दौलतों को जो तबाही और बर्बादी का निशाना बनाया गया है, इस बात की इजाजत जो है वो दुनिया का कोई तबका नहीं देता। ऐसे लोग जो अपने हाथों से अपने ही मुल्क की अमलाक को तबाह और बर्बाद करते हैं और उनको आग लगाते हैं, उनको जो है वो गिराते हैं और मिसमार करते हैं, याद रखें ऐसे लोग ना इंसान हैं, ना इंसानियत के साथ उनका कोई ताल्लुक। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाले को इंसान कहा जाता है। इस्लाम में एहतजाज का तरीका मौजूद है, आपके खिलाफ कोई फैसला है आप एहतजाज कीजिए। एक बंदा नबी करीम के पास शिकायत लेकर आया, मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता है, आपने फरमाया सब्र करो, फिर आया, फरमाया सब्र करो, फिर आया, आपने फरमाया सब्र करो, फिर आया, आपने फरमाया ऐसा करो
अपने घर का सामान बाहर निकाल कर बाहर रख दिया। हर बंदा गुजरने वाला पूछने लगा क्या हुआ? कहता मेरा पड़ोसी तंग करता, वो गालियां देता, लानते डालता और गुजर जाता। एक दिन गुजरा जब उसके ऊपर सैकड़ों लानते पड़ी, वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आ जाओ अपना सामान अपने घर में रख लो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। ये एहतिजाज, अपनी अमलाक को या दूसरे की अमलाक को आग लगाकर जला देना, पत्थर मार के उसको मिसमार कर देना, ये पागलपन की आखिरी हद है। इससे आगे इंसान जो है वो पागलपन भी खत्म हो जाता है। ये मजनूनियत की आखिरी हद है, ये इंसानियत नहीं है। इस्लाम एहतिजाज का जरिया सिखलाता है। आपने फरमाया लोगों रस्तों में चौराहों में ना बैठा करो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह चौक में हमें बैठना बहुत जरूरी है, हमारा गुजारा नहीं होता। आपने फरमाया अगर चौक में बैठना है तो फिर चंद काम करो। क्या करना है? फरमाया कफ्फुल अज़ा, वहां पे किसी को तकलीफ नहीं देनी, कोई नुकसानदेह चीज है रास्ते से हटा देना, गज़्ज़ुल बसर, निगाहों को नीचा करना, गुजरने वाले के सलाम का जवाब देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। ये अगर काम कर सकते हो तो चौक में बैठ जाना, अगर ये काम नहीं कर सकते हो तो फिर चौक में तुम्हें बैठने की इजाजत। कितने अफसोस की बात है, रस्तों को चौराहों को ब्लॉक कर दिया गया। जो भी ब्लॉक करते हैं, ये कल की बात नहीं, पुरानी भी, सब लोग। मैंने सुना एम्बुलेंस में मरीज जा रहा था, एम्बुलेंस को तोड़ दिया गया, मरीज को मारा गया। ये इंसानियत है? ये एहतिजाज है? ये तो अल्लाह की हदों को पामाल करना है और अल्लाह के सामने ऐलान जंग करना है। या अल्लाह तेरे बंदे, कौन तेरे बंदे होते हैं? मैं न तेरे बंदों को जानता हूं, मैं न तुझे जानता। ऐसे करने वाले लोग अजाब इलाही को दावत देते हैं, वो बच नहीं सकेंगे। दुनिया के निजाम से बच सकते हैं, अल्लाह के निजाम से नहीं बच सकते। अल्लाह की आवाज, अल्लाह की लाठी वो बे आवाज है, वो अचानक बरसती है और जब बरसती है तो फिर किसी को छोड़ती नहीं है। वो जब चाहे किसी को जो है वो नीचे से उठाकर तख्त पे बिठा देता है और जिसको चाहता है तख्त से उतारकर तख्तादार पे लटका देता है। उसके फैसले और उसके कज़ाया बड़े अजीबो गरीब हैं। अल्लाह की लाठी को आवाज नहीं देनी चाहिए, उसके अजाब को दावत नहीं देनी चाहिए। इसलिए इन बातों का जो है वो लिहाज रखना चाहिए। मिन हैसुल कौम, जो मुझे समझ में आई है मैंने बात आपके सामने जिक्र कर दी है। हम सबको जरूरत है अपनी इस्लाह करें, छोटे को छोटी इस्लाह की जरूरत है, बड़े को बड़ी इस्लाह की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक नसीब फरमा दे, हमें भी हमारे बड़ों को भी अल्लाह ताला समझ नसीब कर दे, और जिसकी किस्मत में हिदायत नहीं है अल्लाह ताला उसके शर से हमें महफूज फरमा ले। और जो जालिम है और जो जुल्म करना जानते हैं और उन्हें मालूम ही नहीं है इंसानियत क्या होती है, अल्लाह तबारक व तआला उनको नेस्तो नाबूद ही कर दे और इस अर्ज़े पाक को उनके नजस जिस्म से जो है वो पाक और साफ कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।